So hello everyone, here we are going to discuss a question from JEE Advanced 2015 related to magnetic field. So you should pause the video over here and definitely try this question. Let me just tell you that both these questions are multiple option correct type questions. So that means that दोनों में multiple options may be correct, like more than one option may be correct over here, and the same is true for question 18. So I will move into the solution. So we are given that there is a metallic strip and current is flowing in this strip towards the positive x direction, and we have switched on a magnetic field, a uniform magnetic field in the y direction, and the dimensions of the strip are given, the d, w and l, right? And तो लिखा हुआ है कि due to the magnetic field there is a magnetic force on the moving charged particles. So moving charged particles पे जो Lorentz force होती है, that is given by Q into V cross B. So because it's a cross product, the force, the magnetic force is perpendicular to both the velocity of the particles and the magnetic field. तो velocity तो x direction में होगी, right? और magnetic field y direction में है, तो force is on the z direction. So इसलिए यहाँ पे given है question में that due to this charge carriers experience a net deflection along the z डायरेक्शन. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लैंग्वेज थोड़ा गलत है. चार्ज कैरियर्स की जगह करंट कैरियर्स होना चाहिए, क्योंकि मतलब चार्ज तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस भी चार्ज तो कैरी कर रहे हैं बट करंट नहीं कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मूव नहीं कर रहे हैं. सो ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग, आइदर positive charge particles are moving or negative charge particles are moving. We know that in actual scenarios, negative charge particles, either i.e. electrons are the ones which are moving, but किसी hypothetical scenario में positive charges भी हो सकता है move कर रहे हो, right? So magnetic force तो आ जाएगी, right? और उस पता चल जाता है कि देखे कि velocity is in the x direction, magnetic field is in the y direction, so the magnetic force is in the z direction. So charge particles z direction की तरफ deflect हो जाएंगे. तो अगर मतलब हो सकता है कि या तो PQRS पे पॉजिटिव चार्ज आते, जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल केस, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो एक फेस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ऑपोजिट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. और डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी, बट ड्यू टू द फोर्स इन द जेड डायरेक्शन दे गेट डिफ्लेक्टेड, मतलब उनका पाथ कर्व्ड हो जाएगा, टर्न हो जाएगा थोड़ा, एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन दीज फेसेस. ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन एक जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. जेड डायरेक्शन में क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया है, जैसे कैपेसिटर में होता है कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस टू द नेगेटिव चार्जेस, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. बट थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर that electric field itself will start applying a force on the charged particles, right? तो magnetic field और electric field की वजह से जो force होगी वो eventually cancel out हो जाएगी थोड़ी देर बाद, and उसके बाद equilibrium attain हो जाएगा. charged particles will stop moving in the z direction. Of course they will keep moving in the x direction. current तो चल रहा है और x direction में एक electric field भी होगा जो नॉर्मल एक current carrying conductor में होता है, बट z direction वाला जो motion है वो stop हो जाएगा. z direction में forces will get balanced and charges will stop moving in the z direction. So but charge separation तो हो चुका है, charge separation हो गया है, इसलिए there is a potential difference that has come in the z direction. So लिखा हुआ potential difference along the z direction is thus developed, right? तो उसके बारे में कमेंट करना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि हमें विड्थ वगैरह थिकनेस वगैरह गिवन है, तो दो स्ट्रिप दे दी है. तो बेसिकली क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल सा ही है कि अगर डायमेंशंस हमने चेंज कर दी तो उस डेवलप्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा है. और सेकंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कैरियर डेंसिटी को अगर चेंज कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा ईएमएफ डेवलप्ड पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पे. सो दिस इज़ व्हाट दीज टू क्वेश्चंस आर आस्किंग. तो लेट अस सी फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ गिवन है कि करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक्सप्लिसिटली क्यों मेंशन्ड है ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ना कैरी कर रहे होते, पॉजिटिव चार्जेस कैरी कर रहे होते तो क्या होता, राइट? सो देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स
दैट इज ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं करंट, तो करंट एक्स डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस एक्स की तरफ जा रहे होंगे, एंड देयरफॉर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो माइनस वी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड तो वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बिकम ई वी बी टाइम्स के कैप, की चार्ज को मैंने माइनस ई पुट कर दिया और वी को माइनस वी आई कैप पुट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से दिस इज द आंसर। सो इससे आगे कि फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज इन द प्लस जेड डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रॉन्स गो टू द फेस पी क्यू आर एस, तो प्लस जेड वाला जो फेस है वो पी क्यू आर एस है, सामने वाला जिस पे पॉइंट एम ले रखा है इन्होंने, और पीछे वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव फ्रॉम दैट सरफेस, मतलब बेसिकली जो ये पी क्यू आर एस फेस है, इलेक्ट्रॉन्स तो इस पे चले जाएंगे, राइट, एंड द ऑपोजिट फेस विल because the electrons have moved away, initially the conductor was entirely neutral, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट देर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड दैट इज वाई द एंटायर कंडक्टर इज न्यूट्रल। बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया है अब, तो पी क्यू आर एस फेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, द ऑपोजिट फेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, राइट। So this charge separation creates an electric field. In equilibrium, electric and magnetic force must balance each other. तो electric force कैसे निकालेंगे? माइनस एफ बी से निकाल लेंगे, that makes sense. एफ बी क्या है? ई वी बी के कैप है, तो माइनस एफ बी ये होगा. एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड ई है तो माइनस ई टाइम्स ई लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स. दैट मेक सेंस. तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कि इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो चुका होगा, दैट विल बी वी बी इंटू के कैप. सो यू शुड लुक एट दिस कैलकुलेशन वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें माइनस साइंस आ रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर, बट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट. सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इज वी एम माइनस वी के. तो ये एक स्टैंडर्ड सी चीज़ है कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो वी कैलकुलेट इट फ्रॉम एन इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी एल का इंटीग्रल, माइनस ई डॉट डी आर या डी एल, बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स. सो अगर वी एम माइनस वी के लिखना है तो के से एम जाएंगे, बिकॉज एम इज़ द फाइनल पॉइंट, के इज़ द इनिशियल पॉइंट. के से एम जाएंगे, तो के से एम जाने का मतलब के एम वेक्टर, और ये सीधा के एम वेक्टर इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अंदर बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज द सेम एवरीवेयर इन साइड द स्ट्रिप. सो वी एम माइनस वी के इज इक्वल टू माइनस ई डॉट के एम. तो जो इंटीग्रल डी एल है, मतलब इंटीग्रल ई डॉट डी एल है, उसमें ई तो बाहर आ जाएगा बिकॉज ई इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंटीग्रल डी एल बिकम्स के एम वेक्टर. और के एम वेक्टर जो है, के एम वेक्टर प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो के एम वेक्टर का वैल्यू क्या है? डब्ल्यू टाइम्स के कैप, डब्ल्यू टाइम्स के कैप, डब्ल्यू टाइम्स के कैप. तो ई डॉट डब्ल्यू टाइम्स के कैप, और एक नेगेटिव साइन बाहर है. ये नेगेटिव साइन तो होता ही है इंटीग्रल में, दैट इज हाउ पोटेंशियल इज डिफाइंड विद द नेगेटिव साइन. वो इंटीग्रल के आगे एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा के ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. सो वी गेट दिस. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द two faces which are parallel to the xy plane, right? तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा कि W और D के टर्म्स में अगर हमें आंसर निकालना है, W और D के चेंज करने से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो D से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, D तो आया ही नहीं, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ D, राइट? सो इफ W1 इज इक्वल टू W2 तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो A ऑप्शन गलत हो गया. B ऑप्शन में W1 इक्वल टू W2, तो ये करेक्ट हो गया. जैसे ही W1 इक्वल टू W2 है तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे. फिर W1 इज इक्वल टू 2W2, W1 इज इक्वल टू 2W2. सो इसमें उल्टा दिया हुआ है, राइट, कि V2 इज इक्वल टू 2V1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, इन्वर्सली नहीं है. कि अगर फर्स्ट वाले केस में विड्थ ट्वाइस है तो फर्स्ट वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी ट्वाइस होना चाहिए था, बट यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, तो गलत है. And D option is also not correct, so only B option is correct, right? Now for the next part,
इसमें हमें फील्ड और कैरियर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। तो कैरियर डेंसिटी कहाँ से आ जाएगी इसमें? तो कैरियर डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ सकती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ करंट से रिलेटेड है, बी और डब्ल्यू तो करंट से रिलेटेड ही नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आएगी कि हमारे पास ये करंट का रिलेशन होता है, करंट इज इक्वल टू एन ए ई टाइम्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ए ई टाइम्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So this is true for any current carrying conductor, right? N is the charged carrier density. कैरियर डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम उस सब्सटेंस में, उस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है. जैसे कॉपर के अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, मेटल्स में ज़्यादा होते हैं. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक चार्ज कैरियर्स एंड देयरफॉर वो चार्ज कैरियर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कितने चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं करंट को कैरी करने के लिए. तो सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा कम होता है, मेटल्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होता है, और इंसुलेटर्स में बहुत ही मिनिमल होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो. It's a material property. So N is a material property. A is the area of cross section. E is the charge of the charge carriers. तो यहाँ पे हम E ले रहे हैं. And V is the drift velocity. So this is the formula for current. This is a standard result that you must have studied in DC circuits. So the drift velocity comes out to be I over NAE. I over NAE. और drift velocity को यहाँ put करेंगे. Basically, we want to convert the formula that we got for potential difference in terms of the carrier density N. तो बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, कि मतलब हम करंट तो सेम लगा रहे हैं, करंट तो हम सेम फ्लो करा रहे हैं दोनों, assuming that the current I is the same for both the strips, लिखा हुआ है. And now the dimensions are also same. W is same, E is same, obviously it's a universal constant. Area is also same. B और N अलग अलग है. तो B और N अलग अलग होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N. तो यहाँ से देख लेते हैं, B1 इक्वल टू B2 है, N1 इक्वल टू 2N2 है, तो V2 इक्वल टू 2V1 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो A इज़ करेक्ट. B1 इक्वल टू B2, N1 इक्वल टू, ये गलत होगा. C ऑप्शन, B1 इक्वल टू 2B2 एंड N1 इक्वल टू N2. तो B2 जो है वो B1 का आधा है, तो V2 भी V1 का आधा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो C इज ऑल्सो करेक्ट. D option is wrong. So you can check with this formula that A and C options are correct. For the first question, B option was correct. So we have solved the question. We have the question was about कि भाई what are the dependencies of this potential difference on the dimensions of the bar and on the external magnetic field and the carrier density. So we have solved the question. Now let us look at a little more detail into what is happening here, and let us discuss what this effect is known as. So this effect is called Hall effect. So it is a famous effect that was discovered by a scientist named Hall, and it is a very interesting effect because it can be used to determine the sign of the charge carriers or current carriers. So it is very interesting कि current carrying wire के अंदर normally electrons are the current carriers, but sometimes if the charge carriers are positive, so we can determine that. तो इसके रिजल्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि चार्ज कैरियर्स का साइन क्या है. सो कैसे पता चल जाएगा? तो मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज फॉर द सेम करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिवर्सेस डायरेक्शन इफ चार्ज कैरियर्स हैव ऑपोजिट साइन. तो ये तो हम डिस्कस किया ही था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, तो इसलिए वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को माइनस आई कैप में लिया था. और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे तो करंट सेम रखने से, करंट तो हम एक्स डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की सिचुएशन थी उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं कि करंट इज इन द एक्स डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वाई डायरेक्शन, राइट। तो उसी हिसाब से हम करके देखते हैं कि व्हाट डिफरेंस डू वी गेट इफ द करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव और इफ द करंट कैरियर्स आर नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव करंट कैरियर्स के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में होगी, बट नेगेटिव के लिए माइनस एक्स में होगी। मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, लोरेंट्स फोर्स निकालेंगे, तो Q इंटू वी क्रॉस बी, इधर तो सब कुछ पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव है और V के सामने भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, तो क्यू वी बी इंटू के कैप आएगा, I क्रॉस जे से के कैप आएगा। यहाँ पे Q इज नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं जो Q साइन यूज कर रहा हूँ, Q इज द magnitude of the charge. Q and V are magnitudes. V is the speed of the charge carriers. Q is the magnitude of the charge on the charge carriers, current carriers. तो यहाँ Q को मैं माइनस Q डालूंगा क्योंकि साइन इज नेगेटिव, तो फोर्स तो सेम आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स सेम है, देयरफॉर दे विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये करेंगे कि द नेट फोर्स इज जीरो इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से एफ बी प्लस क्यू ई इक्वल टू जीरो लिखेंगे, यहाँ पे एफ बी प्लस माइनस क्यू ई इक्वल टू जीरो लिखेंगे क्योंकि यहाँ चार्ज पार्टिकल्स आर नेगेटिव। तो यहाँ से ई आ जाएगा माइनस वी बी और यहाँ से ई आएगा प्लस वी बी। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन का है, राइट। सो व्हाट रिजल्ट्स हैव वी गॉट कि मैग्नेटिक फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ केसेस, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इज ऑपोजिट इन साइन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑपोजिट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकाला तो वी बी डब्ल्यू आ रहा है, वी एम माइनस वी के, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा तो ये वाला केस था नेगेटिव चार्ज कैरियर्स वाला, जिसमें हमारा आंसर माइनस वी बी डब्ल्यू आया था। बट अगर पॉजिटिव करंट कैरियर्स होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। So the potential difference is different in both cases. It's very interesting. तो current carriers के sign की वजह से the sign of the potential difference changes. It's different in both cases. And therefore if we measure this potential difference, तो हमने basically एक strip लगाया, उसमें conducting strip में current flow करा दिया. So we applied a potential difference across the ends of the conductor, जिससे कि x direction में current flow करने लगा. Right? But we did not know whether the charge carriers were positive or negative. So measuring the potential difference in the z direction, तो z direction में जो potential difference appear हो रहा है because of this Hall effect, because there is a magnetic field which is perpendicular to the direction of the current. तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल्स पे, चार्जेस गेट सेपरेटेड and positive and negative charges go to the same side, but the electric field they generate is opposite because again sign opposite है, तो same face पे गए। इस पॉजिटिव वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में, दोनों केसेस में दे गेट डिफ्लेक्टेड टू द सेम साइड। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे वो भी प्लस जेड वाले फेस पे चले जाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे वो भी प्लस जेड पे चले जाएंगे, क्योंकि दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर्स। बट क्योंकि उनका चार्ज का साइन ऑपोजिट है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड दे जनरेट विल अगेन बी ऑपोजिट। दे आर एट द सेम ऑन द सेम साइड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे प्रोड्यूस इज ऑपोजिट। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस विल हैव ऑपोजिट साइन, देयरफॉर वी कैन डिटेक्ट बाय मेजरिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कि चार्ज कैरियर्स का साइन क्या है। सो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। That this is actually a very interesting fact about the Hall effect. So I hope you liked the solution and the question. The question is very interesting, and it's an example of a question which is not very difficult, but it takes care and focus to solve it correctly, क्योंकि साइन की गलती हो सकती है कभी भी. So if you made a mistake like that, don't get discouraged, because it is indeed not easy to solve it. You need focus to solve this kind of question. देखने में लगता है कि easy है, but then सही आंसर आ जाए वहाँ तक पहुँचने में a lot of people will make mistakes, and that is why sometimes JEE advanced questions look easy
and they are not very difficult. They're not very difficult, but because थोड़ा सा लंबा भी होता है and there are multiple steps involved, we make mistakes. So I hope you like the video and thanks for watching.